नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललितास्य विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पद्रव्यच कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज આપણે જોઈશું लॉ ऑफ कर्म, कर्मનો નિયમ, કર્મનો નિયમ। શ્લોક છે કર્મણો હપી બૌદ્ધવ્યમ ચ વિકર્મણઃ અકર્મણશ્ચ બૌદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિઃ। कर्मणो हपि बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हपि बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। भगवान भगवद गीता में चौथा अध्याय 17वां श्लोक में कहे छे कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अहिया बौद्धव्यम बौद्धव्यम बौद्धयम बौद्धयम એટલે કે જાણી લેવું જોઈએ, જાણી લેવું જોઈએ, જાણી લેવું જોઈએ। શું જાણી લેવું જોઈએ? તો શું છે? કર્મ, કર્મ શું છે એ જાણી લેવું જોઈએ। વિકર્મ શું છે તે જાણી લેવું જોઈએ અને અકર્મ શું છે તે જાણી લેવું જોઈએ। કોઈ વસ્તુ આપણે બહુ ભાર દઈને કહેતા હોઈએ ત્યારે વારંવાર કહીએ, એમ ભગવાન ભાર દઈને કહી રહ્યા છે કે જાણી લેવું જોઈએ। કેમ? કારણ કે કર્મોની આંટીઘૂંટી બહુ ભારી છે। આપણે બધા અહીંયા જગતમાં કર્મની આંટીઘૂંટીમાં ફસાયેલા છે અને એ આંટીઘૂંટી એટલી ભારી છે કે આની પહેલાંનો શ્લોક છે કિમ કર્મ કિમ અકર્મેતિ કવ્યો અપ્યત્ર મોહિતા તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે અશુભાત। ભગવાન કહે છે કિમ કર્મ કિમ અકર્મેતિ કવ્યો અપ્યત્ર મોહિતા। મોટા મોટા બુદ્ધિશાળી इवन ब्रह्माजी सुद्धा भ्रमित थई जाय छे शुं कर्म कहेवाय ने शुं न कर्म कहेवाय। એટલા માટે એ આંટીઘૂંટી બહુ ભારી છે, એટલે જાણી લેવી જોઈએ। લોકો કહે કે મેં કશું ખોટું કર્યું નથી કોઈનું,
અને મારી સાથે કેમ આટલું ખોટું થાય છે? ઘણાની મોટે ભાગના લોકોની કમ્પ્લેન હોય છે ને. તો કારણ કે એ લોકોને આ કર્મની જે આંટી ઘૂંટી છે તેનું નોલેજ નથી હોતું. કર્મ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. એ લોકો પહેલાં શું હતું, બધા ગુરુકુળમાં સ્ટુડન્ટ ભણવા જતા હતા. એટલે ગુરુકુળમાં જ્યારે ભણવા જાય બાળક, સ્કૂલ જેવી સિસ્ટમની સ્કૂલમાં તો હવે પાપ, કોઈ સ્કૂલમાં ભણાવ્યું તમને લોકોએ પાપ પુણ્ય શું કહેવાય એવું? નહીં, કંઈ ભણાવે નહીં, પાપ પુણ્ય કશું ભણાવતા નથી. પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગુરુકુળમાં ભણે ત્યારે એને પાપ પુણ્યનું નોલેજ કરાવવામાં આવે, અને એ પાપ પુણ્યના નોલેજના આધારે એને બચપણના એ નોલેજના આધારે એને ખબર પડે કે મારે આ કરવું જોઈએ, મારે આ ન કરવું જોઈએ. તો આવી રીતે કર્મની આંટી ઘૂંટી બહુ ભારી છે, એને જાણી લેવી જોઈએ. તમને એક ઉદાહરણ આપું. ભગવાન રામ હતા, એ રામ ભગવાનનો રાજ્યાભિષેક થઈ જાય, ભગવાન લંકા પર વિજય મેળવીને પાછા આવે છે, પછી એમનું શાસન સ્થાપિત થાય છે. હવે એનું શાસન જ્યારે સ્થાપિત થાય છે ત્યારે એ પ્રજા માટે, પ્રજા એટલે શું, એમને બાળકો જેવું ધ્યાન રાખે. રાજા જે છે એ પ્રજાને એના બાળક ગણે, અને એ બાળકનું જેમ માતા પિતા ધ્યાન રાખે તેવી રીતના રાજા પ્રજાનું ધ્યાન રાખે. એટલા માટે લક્ષ્મણજીને મોકલે કે જાઓ તમે નગરમાં પરિભ્રમણ કરો અને જાઓ, કોઈને કંઈ ફરિયાદ છે, કોઈને કંઈ મૂંઝવણ છે, તમે જાઓ, જાણી આવો. એટલે ડોર ટુ ડોર એ જાય છે, ડોર ટુ ડોર જાય છે અને બધાને પૂછે છે કે ભાઈ તમને કંઈ મૂંઝવણ છે, તમને કંઈ તકલીફ છે, કોઈને કંઈ તકલીફ છે. हिंदी में बोलूँगा कि गुजराती में चलेगा? तो ठीक है. तो लक्ष्मण जी जाते हैं हर घर, पूछते हैं किसी को कुछ फरियाद है या नहीं, किसी को कुछ फरियाद है कि नहीं. तो कोई बताता नहीं है, वो वापस आ जाते हैं राम भगवान के पास, और भगवान राम को बताते हैं कि किसी की कोई फरियाद नहीं है. फिर राम भगवान बताते हैं नहीं नहीं, एक बार वापस जाओ आप, क्योंकि भगवान राम है, उनको अंतर में ज्ञान है कि किसी न किसी को तो फरियाद है, इसलिए लक्ष्मण जी को वापस भेजते हैं, जाओ आप जान के आओ. लक्ष्मण जी वापस चक्कर लगाते हैं. तो एक कुत्ता होता है, वो कुत्ता लक्ष्मण जी को फरियाद करता है कि मुझे एक फरियाद है. तो बोले क्या फरियाद है? तो कि मैं राज दरबार में आके बताऊंगा. तो लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है आप चलिए. कि उस ज़माने में, क्योंकि ये त्रेता युग का बात है, हम शास्त्र देखेंगे तो उनका भी एक कोडिंग होता है पशुओं का, जिससे वो बातचीत करते हैं. तो वो कई लोग होते हैं, ये तो स्वयं लक्ष्मण है तो उनकी बात समझ गए. तो पशु बोल सकते हैं, यानी उनकी भाषा में वो व्यक्त कर सकते हैं. तो उस ज़माने में लोग उनको जान लेते थे कि ये पशु क्या कहना चाहते थे. तो लक्ष्मण जी के साथ बातचीत हुई. लक्ष्मण जी बोला ठीक है ल चलो. तो राजा ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? पहले तो राजा की बात करेंगे कि सामने से ढूंढेंगे किसी को फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है. अभी कोई पूछने आता है? अभी के राजा ऐसा नहीं है. अगर हमारे घर में चोरी हुई है या हमारे घर में आग लगी है और हम कंप्लेन लिखाने जाएंगे, या हमारी गाड़ी में आग लग गई, तो इंश्योरेंस वाले FSL रिपोर्ट मांगते हैं ना, फॉरेंसिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट मांगते हैं कि जानबूझ के जलाई या इंश्योरेंस पकाने के लिए जलाया है या सही में जली है. तो वो इंश्योरेंस रिपोर्ट निकालने में तो हमारा दम निकल जाता है. पुलिस के पास जाते हैं तो ये इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, 10,000 रुपये लगेंगे, 25,000, जितना इंश्योरेंस गाड़ी का उतना वो पैसे मांगते हैं, है ना. तो आज बड़ा चिंतित वातावरण है. तो उस वक्त ऐसा नहीं था. ये राम राज्य की बात हम कर रहे हैं. राम राज्य ऐसा था, सामने से ढूंढ के लाए कुत्ते को. अभी कुत्ते ने बताया, पूछा भाई क्या तकलीफ़ है आपको?
तो बोले मुझे है ना ये ब्राह्मण ने पैर में मारा लकड़ी और मेरा पैर टूट गया, तो मेरा ब्राह्मण को सजा दी जाए। तो बोले क्या किया ब्राह्मण ने, ब्राह्मण को बुलाओ। तो ब्राह्मण ने आया और बताया कि भाई इसने क्या किया। तो उसने किया कि मैं जा रहा था तो आपने क्यों ऐसा किया, कुत्ते को मारा। क्योंकि प्रजा का काम, कुत्ता भी प्रजा है। प्रजा यानी जिसने वो राज्य में जन्म लिया है वो, तो जो भी जिसका भी जन्म होता है राज्य के अंदर वो प्रजा हो जाती है राजा के लिए। तो कुत्ते को भी न्याय मिलना चाहिए। तो कुत्ते ने बताया कि इसने मुझे खाली फोकट का पैर में मार के मेरा पैर तोड़ दिया। तो ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण ने बताया कि मैं उस दिन भिक्षा मांगने के लिए गया था, मुझे भिक्षा मिली नहीं, मेरा मन थोड़ा, वैसे भी मैं उग्र रहता हूँ और उस दिन और उग्र था, और कुत्ता किसी को भौंक रहा था, खाली पीली भौंक रहा था। तो मुझे आ गया गुस्सा और मैंने एक लकड़ी मार दी, तो उसका पैर टूट गया। तो बोले ठीक है। कुत्ते ने फिर शाहजहाँ ने बोला, राम भगवान ने बोला कि ठीक है, तो अभी ब्राह्मण को सजा होनी चाहिए, कुत्ता सही है। तो कुत्ते को पूछा, बोलो आप क्या चाहते हो, इसको क्या सजा दी जाए। तो बोले कि इसको हमारे अयोध्या नगरी में जो एक बड़ा मंदिर है मठ, उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। तो सब लोग चौंक गए, विश्वामित्र भी बैठे थे कि ये तो कोई सजा थोड़ी हुई, ये तो अपग्रेडेशन हुआ है ना। लेकिन राम भगवान और कुत्ता जानते थे कि अपग्रेडेशन नहीं है। तो सब लोगों ने चकित हो गए। तो पूछा राम भगवान ने सबका डाउट क्लियर करने के लिए कि भाई, शंका क्लियर करने के लिए कि भाई क्यों आप इसको ऐसी सजा, ये सजा कहाँ है, ये सजा नहीं है, आप बताओ सजा कैसे है। तो कुत्ते ने बताया कि अगले जन्म में मैं भी वही मंदिर का अध्यक्ष था, लेकिन अध्यक्ष के नाते मेरा तभी भी गुस्सा वाला स्वभाव था, मेरा भी गुस्सा स्वभाव था ये ब्राह्मण जैसा। और जो भी साधु संत आते थे मंदिर में, उस पे मैं गुस्सा व्यक्त करता था कभी कभी। तो उसके श्राप से, उसके पाप कर्म से मैं कुत्ता बन गया। तो ये तो मुझसे भी बड़ा क्रोधिला है ब्राह्मण, तो इनको भी सजा, ये अगर मठ का अधिपति बन गया तो अगले जन्म में वो कुत्ते के रूप में सजा प्राप्त हो जाएगी उसको। तो ये सजा हुई। तो ये आटी घुटी है ना कर्म की, हम नहीं समझ पाते कि ये कितनी विडंबना भरी बात है। इतना गुस्से से एक व्यक्ति कुत्ता बन जाए, मठ का अधिपति बनने से वो यानी कुत्ता बन जाता है। तो ये बहुत संभल के बात करनी होती है। इसलिए कर्म की आटी घुटी यहाँ बताया गया है कि अकर्मण कर्मणोऽपि बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणो बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। ऐसी ही एक बात हुई। अभी यहाँ बीच में क्या होता था कि एक बार क्या हुआ, जहाँ अर्चा विग्रह मूर्ति होती है ना, तो वहाँ बहुत संभाल के भगवान की सेवा करते हैं। अगर वहाँ चूहा के कुछ आ जाता है मंदिर, वो गर्भगृह में, तो बहुत बुरी बात होती है। तो एक बार एक मंदिर के हमारे प्रेसिडेंट ने पूछा, जब सन्यासी महाराज आए थे तो उनका प्रवचन था, तो सन्यासी महाराज को पूछा कि महाराज अगर गर्भगृह में चूहा चक्कर लगाता है तो क्या करना चाहिए। क्या या उनके मन में ये भाव था कि चूहे को भगवान से प्रेम है, इसलिए भगवान के साथ वहाँ विराजमान हो रहा है। तो महाराज ने बताया कि अगर चूहा ऐसा करता है, अगर गर्भगृह में चूहा आ जाता है और घूमता रहता है, तो मंदिर के अध्यक्ष को गोली मार देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देखभाल नहीं कर रहे, अपने पुजारी को बता नहीं रहे कि पुजारी ये जो तुम्हारी देखभाल नहीं है, इसके बदौलत चूहा यहाँ चक्कर लगा रहा है, क्योंकि साक्षात भगवान है वो। तो ये आंटी घुटी बहुत समझनी भारी है, इतना आसान नहीं है। क्या से क्या हो सकता है। हमारे मन में ये लगता है कि ये साधु है, लेकिन साधु भी कभी कभी क्या होते हैं,
कर्म नहीं, कर्म के हिसाब से भ्रम राक्षस बनते हैं। क्या बनते हैं? भक्त भी भ्रम राक्षस बन जाते हैं कभी कभी, तो संभालना चाहिए। लॉ ऑफ कर्म, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, है ना। जो हमने बोया है, जो हम लगाएंगे वही हमको काटना पड़ेगा। आज के विषय कर्म के नियम क्या है, कर्म का नियम कैसे काम करता है। कर्म ये 2 भागों में है टोटल, आज और नेक्स्ट बुधवार। कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, कौन किस किस को मालूम है कर्म, विकर्म और अकर्म? हमने 6th सेशन में देखा डेफिनेशन इसकी। कर्म का फल कब मिलता है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कारण कौन है, कर्मफल के क्रमिक स्तर, कर्मफल के बंधन का चक्र, नरक में सज़ा मिलती है तो फिर दूसरे जन्म में सज़ा क्यों भुगतनी पड़ती है, ये अगले शुक्रवार बुधवार को देखेंगे। प्राणी तो कर्मों के नियम से मुक्त है तो फिर उनको पाप का फल क्यों भुगतना पड़ता है, वो भी अगले बुधवार। कर्म के फल से क्षणिक मुक्ति और पूर्ण रूप से कर्म के फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये चार चीज़ हम अगले बुधवार को देखेंगे, बाकी की हम आज देखेंगे। समाज में कर्म के बारे में गलत समझ क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, है ना ये समझ। तो क्या ये ऐसा होता है? हमने क्या देखा था उस डेफिनेशन में 6th सेशन में, इसके लिए हम कहीं कहीं जाते हैं, लोगों के घर में ये सूत्र गीता सार के रूप में लिखा होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, है भाई। तो उस वक्त क्या देखा था हमने, उदाहरण क्या लिया था? खुशी, क्या उदाहरण लिया था हमने? 2-3 उदाहरण लिए थे उस वक्त। क्या बोलो क्या? अगर हमारे घर में चोरी होती है और हम पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं कि साहब हमारे घर में चोरी हो गई, तो पुलिस कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। एक उदाहरण ये देखा था। फिर हम हमारे बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? जो होगा अच्छा होगा, उनको शांति से खेलने दो ना, उनको खेलना है, लेकिन हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और हमें भी क्यों फैक्ट्री में जाना है? जो होगा अच्छा होगा, शांति से बैठ के टीवी देख सकते हैं। तो ये गलत धारणा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। सभी गलत कर्म भगवान करवाते हैं। भगवान अगर नहीं करवाते तो ऐसा कभी नहीं होता। पहले एक अभी गीत चल रहा है कि हे कृष्णा तूने मुझे माया लगाई, ऐसा गाय, हे भगवान हे कृष्णा तेने મને માયા લગાવી, એવું ગીત છે ને હમણાં ગુજરાતીમાં ચાલતું, કોઈને ખબર છે? तो कृष्णा थोड़ा किसी को माया में डालते हैं। कर्म को कोई भी नाश नहीं कर सकता। हम जब लोगों से बात करते हैं तो सब लोग बताते हैं कर्म कभी नाश नहीं हो सकता। सुना है? किसने सुना है? हाथ ऊंचा कर। तुमने सुना है ऐसा? कर्म का नाश हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए, कौन बताएगा? भगवत गीता के 5 टॉपिक, हाँ बताइए, जोर से बोलिए तो पता चले। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो भगवत गीता में लोग ऐसा कर्म कभी नाश नहीं हो सकते, ऐसा लोगों के अंदर मान्यता है, लेकिन कर्म का नाश हो सकता है। भगवत गीता के 5 टॉपिक है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें 4 सनातन है, कायम के लिए है, लेकिन कर्म जो है वो नाश हो सकता है।
लेकिन लोगों को में ये मान्यता है कर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, कर्मનું ફળ તો ભોગવવું જ પડે, બોલते हैं ને ऐसा है। એટલે એ લોકોનું કહેવાનો મીનિંગ કર્મ કદી નાશ થાય नहीं, पर भगवान भगवद गीता के जब शुरुआत करते हैं 2.40 या 39, तो भगवान बोले ऐसा बीते हिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शुणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। मैं वो ज्ञान बताऊंगा अभी जिससे समझ के कार्य करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन प्रहस्यसि, कर्म बंधन को काट पाओगे। तो कर्म का नाश हो सकता है, लेकिन लोग बोलते नहीं नाश हो सकता। भगवान को भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लोग बोलते हैं सुना है, कहाँ सुना है? बालिक के, हाँ बोले એવું કે કઈ એને વનવાસ મોકલ્યો ભગવાન રામને, એટલે કઈને હવે જેલમાં પૂર્યા અને જ્યાં ભગવાન એને ત્યાં જન્મ થયો। બીજું લોકો એમ કે વાલી જે છે, પ્રચલનમાં વધારે આ છે કે ભગવાને સંતાઈને વાલીને માર્યો સુગ્રીવના કહેવાથી, એટલે ભગવાનને એ કર્મનું ફળ લાગ્યું। એટલે જ્યારે એ ભગવાન રામ કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા ત્યારે એ વાલી શિકારી બન્યો અને શિકારીએ એને બાણ, ભગવાન ઝાડ નીચે બેઠા હતા તો એને ભગવાનને બાણ માર્યું। એ કર્મનું ફળને લીધે ભગવાનને એ બાણ વાગ્યું, એવું કહે સાંભળ્યું છે કોઈએ? પણ ભગવાન શું કહે? ન મેં કર્મણી લિપ્યંતી, મને કોઈ કર્મનું ફળ લાગતું નથી। ન મેં કર્મ ફલે સ્પૃહા, મને કોઈ કર્મફળમાં આસક્તિ પણ નથી અને મને કર્મનું ફળ લાગતું નહીં। ઇતિ મામ યો ભી જાનાતિ, જે વ્યક્તિ આ જાણી લે છે કે મને કર્મનું ફળ લાગતું નથી, કર્મ બંધન સ પ્રહસ્યસી, તે ભી ન મેં કર્મણી લિપ્યંતે ન મેં કર્મ ફલ પ્રિય ઇતિ મામ યો ભી જાનાતિ કર્મ ભી ન સત્ય બધ્યતે, એને પણ કર્મનું બંધન લાગતું નથી। તો આપણે આ ઊંધું વિચારીએ તો શું થશે? ઊંધું વિચારીએ તો શું થશે? ભગવાનનો અપરાધ થશે અને બહુ મોટું કર્મનું બંધન લાગશે। क्या लेवाने? कर्म ही पूजा है ऐसा बोलते हैं। मैं तो कर्म ही को पूजा मानता हूँ। कर्म ही सर्वोपरि है। हम कर्म करेंगे, भगवान को फल देना ही पड़ेगा। ये जो दो चीज़ है ना, कर्म मीमांसा, न्यायशास्त्र અત્યારે આ તમારા માટે નથી, ન્યાયશાસ્ત્ર આવે એટલે સંહિતાઓ આવે, ન્યાયશાસ્ત્ર આવે। ન્યાયશાસ્ત્રની અંદર અલગ અલગ ભદ્વા સંહિતા, મનુ સંહિતા, કર્મ મીમાંસા એવું બધું આવે। તો કર્મ મીમાંસાનો સિદ્ધાંત જૈન લોકો બોલે છે, થોડુંક ભારી છે, તમે एडवांस होते समझो। मैं अपना कर्म करता हूँ और किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तो फिर मेरे भगवान को भजने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे भक्ति करने की क्या ज़रूरत है? मैं किसी का कुछ बुरा करता नहीं हूँ, तो मेरी को भक्ति करने की क्या ज़रूरत है ना? ऐसा बोलते हैं। तो खाते हो, अग्नि ज्वलित करते हो, कितने जंतु मर जाते हैं, नहाते हो, कितने जंतु मर जाते हैं, बाइक लेके आते हो तो कितने बाइक में जंतु मर जाते हैं। उनको तो मजा करनी थी जंतु को तो, लेकिन तुम्हारी बाइक में तुमने कचड़ लिया। कितने मेढक आ जाते हैं बारिश के सीज़न में, है ना? तो हम किसी का बुरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम रोड के बीच सड़क पे बाइक चलाते हैं और पीछे वाले को बहुत जल्दी है, वो हों करेगा, लेकिन वो बीच में आएगा, उसको पता ही नहीं कि मैं उसके बीच में आ रहा हूँ, तो वो पीछे वाले का तो बुरा हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। हम जाने अनजाने में ये जगत में बहुत दूसरे लोगों का बुरा करते हैं। लॉ का अस्तित्व क्यों है? હવે પહેલો પ્રશ્ન થાય, पहला प्रश्न उठता है कि भाई कर्म का नियम क्यों है?
किसी भी नियम क्यों होते हैं? पहले ट्रैफिक के नियम होते हैं, क्यों होते हैं नियम? बताइए। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, 2 रास्ते हैं। एक है जिसमें नियम है कि भाई आप लेफ्ट साइड चलाओगे, ये भाई राइट साइड पे चलाएगा। और एक रास्ता है जिसमें कोई नियम फॉलो नहीं करते, जिसको जहाँ चलना है तो कौन सा रास्ते में से सब लोग जाएंगे? कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? बताइए। नियम वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कोई झंझटबाजी नहीं रहेगी। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मुझे मथुरा से गया था मैं ट्रेन में। हम हमेशा ट्रेन से ही जाते हैं, ट्रेन का कामकाज एकदम मस्त है। रात को 8 बजे यहाँ से बैठने का सूरत से, सुबह 7 बजे उतर जाने का मथुरा में, शाम को 7 बजे वहाँ से बैठने का, सुबह 6 बजे सूरत उतर जाने का। एक रात में सोने का सूरत, शाम को मथुरा, सुबह मथुरा को शाम को बैठे, सुबह सूरत। एकदम आसान काम। लेकिन टिकट नहीं मिली, रिटर्न टिकट। ट्रेन में गए, रिटर्न टिकट नहीं मिल रही थी कंफर्म, तो मैंने प्लेन से करवाई दिल्ली से। तो फिर जाना था हमें मथुरा से दिल्ली बाय कार। तो हम जा रहे थे, तो क्या हुआ, दोनों साइड एक एक ट्रक जल गई, दोनों साइड। तो वहाँ से ट्रैफिक रुक गया और यहाँ से जाने का ट्रैफिक रुक गया। और हमारा 2 घंटा, मैंने 4 घंटा रख के निकले थे हम। मेरा प्लेन तो 6 बजे थे, हम 1 बजे निकले थे। तो इतना ट्रैफिक जाम हो गया, तो ये लोग यहाँ से गए। ये जो लेफ़्ट वाले थे जा रहे थे, वो सब राइट में जाने लगे, क्योंकि वहाँ से कोई आ नहीं रहा था। और ऐसा वहाँ आगे जाया तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ जाम था। और वो लोग वहाँ से आए और रॉन्ग साइड पे आ गए। फिर इतना खिचड़ा हो गया, ये दोनों गलत, सामने गलत साइड पे आ गए, थोड़ा इस तरफ। तो मैंने बोला कि भाई मेरा प्लेन छूट जाने वाला है, रात को यहीं रहना पड़ेगा। तो मैं बोला प्लेन की टिकट कैंसिल कराता हूँ, ड्राइवर को बोला। ड्राइवर बोला थोड़ा रुक जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है, तुम कैसे भी करके पहुँचाएगा, मैं 2000 तुमको गिफ्ट में दूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि 15-16 हज़ार की तो टिकट बिगड़ेगी। तो उसने कैसे भी करके 8 घंटे पहले पहुंचा दिया एयरपोर्ट पे। तो अगर नियम नहीं है मतलब तो बहुत भारी होता है। तो नियम क्यों होते हैं? नियम होते हैं एक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए। दूसरा भगवान ने नियम इसलिए बनाया है हमारे कल्याण के लिए, हमारा शुद्धिकरण हो। और तीसरा गलत सही क्या है उसकी हमें पहचान हो, इसीलिए नियम होते हैं। अगर नियम नहीं होते तो सब व्यस्त हो जाएगा। बहुत सारे नियम हैं ऐसे शास्त्र में। और सर्वोपरि नियम क्या है? शास्त्रों में सर्वोपरि नियम क्या है? सर्वोपरि नियम है कि कभी भी कृष्ण को भूलना नहीं है, रात दिन उनका नाम लेना है। सब नियमों के सर्वोपरि नियम ये है। ये साइंटिफिक दृष्टि से भी देखेंगे, न्यूटन का लॉ है, क्या है? इवन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, क्या स्टेट करता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। अगर हम बॉल मारेंगे दीवार पे तो इतनी स्पीड में बॉल वापस आएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो ये न्यूटन ने ढूंढा, लेकिन भगवत गीता में तो सालों से है, करोड़ों सालों से ये नियम है कि आप गलत करोगे तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, कर्म बंधन में पड़ोगे। कर्म की परिभाषा, कर्म यानी प्रवृत्ति। हम मन से, वाणी से, तन से, मन से कर्म करते हैं। इसका तो दुखी होना चाहिए, बड़ा दुखी होना चाहिए तो मुझे मज़ा आ जाए। ऐसा मन से हम कर्म करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं? किसी के प्रति हमारी अदेखा है, ईर्षा है, तो हम ऐसा सोचते हैं इसको तो कुछ बीमारी आनी चाहिए तब पता चलेगा। लेकिन भगवान ने एक हमारे कलयुग के जीव पे बहुत कृपा करके रखा है, क्योंकि कलयुग के सब जीव ईर्षालु है। तो
तो भगवान ने ये कर्म का फल काट दिया है। क्या काट दिया है? हम किसी की कितनी भी बुराई करें, मन में सोचे, तो उसका फल मिलता नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में मिलता है, लेकिन ये कलयुग में मिलता नहीं है। फिर भी हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो एक दिन वो हमारी एक्शन में आ जाएगा। जो हम सोचते हैं वो एक्शन में एक दिन तो आएगा। तो अगर हम बार बार सोचेंगे, गलती से हमारे मन में आ गया, निकाल देने का, उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन बार बार सोचते रहेंगे तो एक्शन में आएगा। तो मन से, वाणी से कभी हम किसी को लिए बुरा बोल जाते तो उसकी सज़ा मिलेगी। और वपु से, शरीर से कर्म करेंगे तो उसकी भी सज़ा मिलेगी। वो कर्म समय की रूपी साक्षी, समय रूपी साक्षी और भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म के प्राथमिक नियम, हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम से सावधान रहना चाहिए। हम कैसे जान सकते हैं कि कर्म का नियम काम करता है? प्रश्न ये છે કે કર્મનો નિયમ છે ભગવાને બનાવ્યો ભગવદ્ ગીતામાં, પણ આપણને વાસ્તવિક રીતે કેવી રીતે ખબર પડે કે ભગવાને કર્મનો નિયમ બનાવ્યો છે તે વાસ્તવિક રીતે કાર્ય કરે છે કે નહીં, करता है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, सेकंड लॉ है न्यूटन का कि फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो ना, किसने ढूंढा? न्यूटन ने ढूंढा ना। इट इज फर्स्ट लॉ। सेकंड, हाँ अलग છે, પણ ન્યૂટને જ મહોદેલો। તો આપણે જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ અગાસી પર ચડી જાય ને પડે તો નીચે આવે, તો આપણે ખબર પડે કે ગ્રેવિટેશનલ, ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ કામ કરે છે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કામ કરે છે। તો એવી રીતે આપણને કેવી રીતના ખબર પડે કે કર્મનો નિયમ કામ કરે છે? કેવી રીતના સમજી શકીએ? તો ઉદાહરણ, આ જગતને જોવાથી આપણે ખબર પડે। જો વી લીવ ઇન અ વર્લ્ડ વેર ઇચ વન ઓફ અસ આર યુનિક। આ જગતમાં દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ છે। દરેક વ્યક્તિ શું છે? કોઈ લુલું છે, કોઈ લંગડું છે, કોઈ ગરીબ છે, કોઈ અમીર છે, કોઈ સુંદર છે, કોઈ કુરૂપ છે, કોઈ અપાહી છે એટલે કે લંગડું છે, કોઈ ધનવાન છે, કોઈ ગરીબ છે, ડૉક્ટર છે, મજદૂર છે। તો કેમ આવું? શેના આધારે? કોણ નક્કી કરે? શેના આધારે નક્કી કરે? લોકો મુસલમાન, તમે જાણો છો મુસ્લિમ ધર્મ? તો મુસ્લિમમાં એ લોકોને એ ધર્મ એમ કહે कि अल्लाह ने हमें हमारी परीक्षा के लिए हमें भेजा है, हमें भगवान की बंदगी करनी है। इस जन्म में अगर हम भगवान की बंदगी करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, यानी भगवान के धाम नहीं, जन्नत में जाएंगे। और अगर भगवान ने हमारी परीक्षा ली और वो परीक्षा में अगर हम फेल हो गए तो जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहन्नम में, એટલે દોજખમાં જાય, એટલે કે નર્કમાં જશે। તો અમે એને પ્રશ્ન કરીએ, કારણ કે એ લોકોને બી કીધું છે કે તમારે બીજી કોમ, અલ્લાહની એક કુરાનની આયાત છે કે તમારે બીજી કોમના લોકો સાથે ધર્મની ચર્ચા કરવી। એટલે આપણો સ્ટોલ લાગે, બાજુમાં મુસલમાન એના પુસ્તકનો સ્ટોલ લગાવે તો ચર્ચા કરવા આવે। અમે ચર્ચા કરીએ, એ લોકો ચર્ચા કરે। તો એ લોકોને કહીએ કે ભાઈ ઠીક છે, જો અલ્લાહ પરીક્ષા કરવા આપણે મોકલ્યા હોય તો પરીક્ષામાં તો એક સરખું વાતાવરણ હોવું જોઈએ ને બધાને પરીક્ષા લેવા માટે। ખ્યાલ આવ્યો ને? બધાને અલગ અલગ વાતાવરણ કેમ આવ્યું? કોઈને બકરી બનાવી, કોઈને હાથી બનાવ્યો, કોઈને લંગડો બનાવ્યો, કોઈને લૂલો બનાવ્યો, કોઈને ધનવાન બનાવ્યો। તો આવી રીતે કેવી રીતના પરીક્ષા લે? તો એના પહેલાં એ લોકો કર્મમાં નહીં માને એટલે કેવું? ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે કર્મમાં નહીં માને એટલે કર્મમાં માને એ લોકો, પણ એ લોકો એમ નહીં માને કે આપણું આની પહેલાં શરીર હતું ને હવે પછી શરીર થશે। દેહાંતર પ્રાપ્તિ એટલે આપણે વારંવાર જન્મ થાય છે એમાં નહીં માને। તો આપણે એને એ સમજાવવા માટે એ સમજાવીએ કે ભાઈ તો આ બધા લૂલા લંગડા કેમ છે? તો કે એને લૂલો રાખીને બંદગી પરીક્ષા કરે છે, પેલાને લંગડો રાખીને પરીક્ષા કરે, પેલાને અમીર બનાવીને પરીક્ષા કરે। તો મેં કીધું તો એ જો પરમ ન્યાય કરવાવાળો વ્યક્તિ હોય તો કોઈને લંગડો રાખીને હું કરો પરીક્ષા લે? ભગવાન પરમ ન્યાયી વ્યક્તિ છે। તો એ લોકો પાસે એનો જવાબ હોતો નથી। તો એવી રીતે
અહીંયા આ બધી अलग अलग स्थिति છે, કેમ છે? कौन निश्चित करता है? किसके आधार पे हम पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? शिक्षण, मुझे ये स्कूल में पढ़ना है, ये कॉलेज में पढ़ना है, मुझे इस इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे डॉक्टरी लाइन में जाना है। नौकरी हम पसंद करते हैं, इस कंपनी में करूँगा, ये कंपनी में नहीं करूँगा। हैं, जीवन साथी ढूंढने में हम मुझे ये कन्या अच्छी नहीं लगती, ये नहीं लगती, ये अच्छा लगता है तो मैं इसके साथ शादी करूँगा। तो ये सब कुछ हम पसंद करते हैं, है कि नहीं? ये हमारे हाथ में है। ये कार मुझे चाहिए, मुझे मर्सिडीज लेनी है, वो कहता है कि मुझे ऑडी लेनी है, रोल्स रॉयल लेनी है। अपार्टमेंट मुझे ये इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है। ये सब हम पसंद करते हैं। हम निर्णय करते नहीं करते किसके बारे में कि ये व्यक्ति मेरे माता पिता बनेंगे। तो कौन नक्की करता है मेरे माता पिता कौन बनेंगे? अगर हमें नक्की करना होता कि हमारे माता पिता ये बने तो हम सब मुकेश अंबानी के यहाँ बन जाते पुत्र है। और अमिताभ बच्चन का लड़का क्या नाम है? अभिषेक और ऐश्वर्या राय के यहाँ लड़के बन जाते हैं। लेकिन हम कोई और पसंद करता है, नक्की करता है। किसके आधार पे? हमारा चेहरा है तो हमें सबको हर रोज ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जेंट्स और स्त्री दोनों, हम खूबसूरत दिखे ऐसा अच्छा लगता है ना हमें। हमारे कांच में हम देखते हैं हम अपने आप को तो अच्छे दिखते, तो हमको भी अच्छा लगता है खुद को। लेकिन हमारा चेहरा अगर अच्छा नहीं है तो हम चेंज कर देते, लेकिन नहीं कर पाते। तो कौन नक्की करता है हमारा ऐसा चेहरा होगा? हमारी बुद्धि, ये आइंस्टाइन की, न्यूटन की बुद्धि कैसी कैसी थी। हम सोचते कि मेरी भी ऐसी बुद्धि हो जाए तो मैं नाम कर लूँ अपना दुनिया में। तो ये हमें दी जाती है। कौन देता है और कैसे नक्की होता है? कौन पसंद करता है और किस आधार पर? क्या ये सब कुछ स्वयंभू होता है? बोलिए, बाय फ्लूक થઈ જાય, ऑटोमेटिक થઈ જાય कि એની પછાડી કંઈ કારણ હોય? तो वही मुसलमान को हम समझाते हैं कि इसके पीछे कारण है। इसका मतलब है इसके पहले हम थे। जरे हम बोलते हैं कि ये कर्म का कारण है, तो इसका मतलब है हम तब थे और हमने कार्य किया है, इसलिए अभी हम हैं। तो शास्त्र बताते हैं किस प्रकार हमारा जन्म, सुंदरता, बुद्धि सहसा उत्पन्न घटनाएं हो सकती है, नहीं हो सकती। भगवान बताते कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहो पपत्ये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंस रेत कणाश्रय। पुरुषना वीर्यनो आश्रय लईने जीव माना गर्भमां प्रवेशे छे। केवी रीते? कर्मणा देवे नेत्रेण। भगवाननी नजरमा तमारा जेवा कर्म छे ने तमारी जेवी इच्छा छे एना आधारे भगवान ए जीवने ए माना गर्भमां प्रवेश करावडावे। तो कर्मना आधारे आ बधुं नक्की थाय छे। विविध प्रकार के कर्म। ख्याल के आ पॉइंट क्लियर थई गयो कि भाई कर्मनो नियम केवी रीतना काम करे छे? तो आ जगतमां आ बधी विविधता छे अने ए विविधतानुं कारण छे कर्म। तो एना आधारे આપણે નક્કી કરીએ કે કર્મનો નિયમ કામ કરી રહ્યો છે। विविध प्रकार के कर्म। कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाता है, वो सद्कर्म। जो शास्त्र बताते हैं वो हिसाब से हम कार्य करते हैं। ब्राह्मण का कार्य है, वैश्य का कार्य है, शूद्र का कार्य है, क्षत्रियों का कार्य है, स्त्री का कार्य अलग है, पुरुष का कार्य अलग है। ऐसे विद्यार्थी ब्रह्मचारी का कार्य अलग है, गृहस्थ का कार्य अलग है। तो ये सब जो कार्य शास्त्र में बताए गए हैं उस हिसाब से हम करते हैं, उसको बोलते हैं कर्म। जो शास्त्र में नहीं बताया गया है वो हम करते हैं तो वो भी कर्म कहलाएगा। जैसे मांस खाना और ख़ास करके गाय का मांस खाना, तो वो भी कर्म है। फिर और क्या विकर्म में आता है? क्या आता है? बहुत कुछ आता है विकर्म में। मदिरा पान करना, और क्या करना? और बताइए। चोरी करना, खून करना, लूट करना। और क्या आता है? जुगार रमू,
और बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँगा तो आप लोग अगले गुरुवार को बुधवार को नहीं आएंगे। लोगों को क्या है, ये लोगों को बहुत नियम नहीं चाहिए। नियम हमारे कल्याण के लिए है, जिससे हम भगवान के धाम में वापस जाए। अगर भगवान ने कर्म का नियम नहीं रखा होता तो हम हमारा शुद्धिकरण नहीं करते और भगवान ने के धाम में जाने के लायक रहते ही नहीं, और यहाँ मारकूट चलती रहती। वो जैसे ट्रैफिक जाम हो गया था ना, ऐसा यहाँ माठाकूट चलती रहती अगर भगवान ने ये नियम नहीं बनाया होता तो। और जहाँ नियम है वहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इस्कॉन में जाएंगे तो बहुत नियम बताते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसलिए ये बाबा अच्छा है, यहाँ जाएंगे तुम कुछ भी करो, हमें आशीर्वाद दो। बाबा आशीर्वाद देने वाला बाबा चाहिए लोगों को। क्या चाहिए? आशीर्वाद देने वाला बाबा चाहिए। तो विकर्म, तो विकर्म बहुत सारे विकर्म हैं, उनको पाप कर्म बोलते हैं, जो शास्त्र में नहीं बताया वो करते हैं। अकर्म, जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी प्रत्याघात भुगतना नहीं पड़ता, पाप या पुण्य दोनों का प्रतिघात नहीं भुगतना पड़ता, वो है भक्ति योग में कार्य। वो हम अगले बुधवार को अंत में समझेंगे। कर्म का फल कब मिलता है? तुरंत। एक पहला भाग है कर्म की प्रतिक्रिया। કોઈ કર્મ આપણે કરીએ અને તરત જ આપણે ફળ મળે। જેવી રીતના કોઈ લેપટોપ ચોરીને ભાગે એક વ્યક્તિ અને તરત જ બહાર ભાગવા જાય, કાર સાથે એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો તરત મળ્યું। ઘણી વખત આપણે પશુને હેરાન કરતા હોઈએ અને પશુ આપણને ફટ દઈને મારી દે। ગાયને કે ઘોડાને આપણે હેરાન કરતા હોય ને ઘોડો ફટ દઈને કિક મારી દે, તરત મળે। તો એક કોઈ કર્મનું ફળ તરત મળે, કોઈ કર્મનું ફળ થોડી વાર પછી મળે, એટલે 2, 4, 5 મહિના પછી મળે। જેમ કે આપણે કંઈ વાવીએ અને 4 મહિના પછી ચોખા વાવ્યા હોય અને 4 મહિના પછી આપણે લણીએ, તો એવી રીતના થોડાક મહિનાઓ પછી મળે। કોઈ જે છે એ થોડી વાર વરસ પછી મળે, અમુક વર્ષ પછી મળે। જેમ કે આપણે આંબો વાવ્યો તો 5 વર્ષ પછી કેરી આવે, અથવા નારિયેળીનું ઝાડ વાવ્યું તો 5-6 વર્ષ પછી નારિયેળ આવવા માંડે। તેવી રીતે ઘણી વખત શું થાય, આપણે જોઈએ કોઈ ગાય કોઈને મારતા જોઈ છે? તમે કોઈને ગાય કોઈ માણસને મારતા જોઈ છે? નથી જોઈ? જોઈ છે? કોઈ માણસને ઓળખે ને તો એ માણસને પછાડી દોડે ગાય અને એને મારે અને છોડે નહીં છેલ્લે ઘડી લગીને। આપણે એમ થાય કે આ તો પહેલી વખત આને કેમ આવી રીતના મારે? એ ગાય એની પછાડી દોડે। એક છોકરો હતો તો બચપણમાં પેલા હાથીને બચ્ચાને લલચાવ્યા કરે, ખવડાવું અને પછી ખવડાવે નહીં। હાથીની સ્મરણ શક્તિ બહુ તેજ। હાથી મોટો થાય, છોકરો બી મોટો થાય, એક સમય જુલુસ નીકળે। તેમાં આ વ્યક્તિ જે એને લલચાવીને આપતો નહીં હોય તે હાથી જોઈ જાય, ફટ કરીને એક ઝાપટ મારે સૂંઢથી, પેલો બેહોશ થઈ જાય। હું નાનો હતો ને, અમે શાંતાદેવી રોડ પર રહેતા હતા, ત્યારે રશીદ ખાન કરીને એક અમારી સ્કૂલમાં ભણતો હતો વિદ્યાર્થી, હેન્ડીકેપ હતો થોડોક ફિઝિકલી। તો એ દિવસે અમારી ઘરની, એટલે એ રોડ પરથી અમારી સોસાયટી નાકા પરથી પાસ થતો હતો, તો હું તો પાછળથી ગયો, તો એક ગાય બહુ મારે એને, એટલો બધો મારે, બધા લોકો છોડાવવા કરે પણ એ છોડે જ નહીં એને। અને પછી હું ગયો તો મેં બી જોયું કે એને છોડતો, આપણે નાના છોકરા હોય એટલે આપણે તો કંઈ કરી નહીં શકીએ। તો બધા લોકો વિચારે કે આની પછાડી કેમ આ ગાય દોડી? કેમ દોડી? કારણ કે અમુક વર્ષ પછી પહેલાં કંઈ કરેલું હોય તે પેલી ગાયના મનમાં યાદ રહી જાય। પછી ઘણી વખત વ્યક્તિગત આપણને ફળ મળે કર્મનું, અને ઘણી વખત સામૂહિક કર્મનું ફળ મળે। ભગવાન એક હાથે બધાને લઈ જાય બસમાં બેહાડીને, સામૂહિક કર્મનું ફળ આપવાનું હોય ને પછી બસને ખાઈમાં પાડી દે, એટલે બધાના ભેગા કર્મનું ફળ એક હાથે સ્વાહા। અત્યારે મ્યાનમારમાં ને મ્યાનમાર કહેવાય કે શું કહેવાય ને, તો એમાં ધરતીકંપ આવ્યો અને કેટલા હજારો લોકો મરી ગયા।
तो ये सामूहिक कर्मનું ફળ કહેવાય। एक पाप से दूसरा पाप कैसे होता है? जैसे फल कैसे मिलता है? आ છે એનો રૂટ શું છે कि पापम अप्रारब्ध कूटम पहले से अहींयाથી શરૂ થાય કૂટમ। આ કૂટમ એટલે શું? એક નાનો છોકરો જન્મે પછી એનામાં એક શક્તિ રહેલી હોય અંદર, પણ એને પણ નહીં ખબર હોય, આપણને પણ ખબર નહીં હોય કે એ મોટો થશે તેમ તેમ એ ચાલતા શીખશે। એટલે ચાલવાની શક્તિ એનામાં છુપાયેલી છે પણ એને ખબર નથી। એવી રીતે આપણે કોઈ દિવસ ઘરેથી નીકળીએ તો ગુસ્સો કરવાની આપણી અંદર પ્રવૃત્તિ છે, પણ આપણે નક્કી નથી કરેલું કે આપણે આજે ગુસ્સો કરશું। પછી વાતાવરણ એવું સર્જાય આપણે ગુસ્સો કરીએ, એટલે બીજ છે એને બીજી દ્રષ્ટિએ જોઈએ, બીજ છે ઘરમાં પડેલું, પછી એને કુટુંબ કહેવાય। પછી એને જમીનમાં વાવીએ અને ફણગો ફૂટવાની તૈયારી થાય તો એને બીજમ કહેવાય। હવે આ બીજમ પરથી શું થાય તે પછી આપણે જોઈએ। પછી બીજમ પરથી આપણે પાપ કરીએ, ફણગો ફૂટે એટલે એમાંથી ઝાડ થાય, એટલે આ બીજમ છે, અહીંથી આ લાઈન આમ ઉપર ગઈ છે એટલે પાપ કરીએ। એ વખતે આપણે જોયેલું કે વ્યક્તિ લૂંટ કેવી રીતના કરે, ત્યાંથી રોજ પાસ થતો હોય, કોઈ દિવસ લૂંટવાનો ઈરાદો નહીં હોય એને, પછી જોઈ કે આ બેંકમાં કોઈ વ્યક્તિ ધ્યાન રાખવાળું નથી એટલે એને લૂંટવાનો ઈરાદો થાય, એટલે એને બીજમ કહેવાય। લૂંટવાના ઈરાદેથી નથી પાસ નથી થતો, પણ વાતાવરણ જોઈને એને લૂંટવાનું મન થાય, એને શું કહેવાય? બીજમ। પછી એને લૂંટે એટલે સજા નથી મળી તો એને અપ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય। પાપ કર્યું પણ હજી સજા નથી મળી, એ અપ્રારબ્ધ થયું। પછી એને સજા મળી જાય એટલે એને પ્રારબ્ધ કહેવાય। એને એ પકડાઈ જશે અને એને ફળ મળે। તો એવી રીતે આપણે એક વિડીયો જોઈએ, સમય હોય તો 4 મિનિટનો વિડીયો છે યુટ્યુબ પર, કેવી રીતના કર્મ આપણને પ્રાપ્ત થાય। શું કર્યું આણે? જોયું ને, પેલા ગાડીને જબરજસ્તી દરવાજો ઠોઈકો, એને એમ કે કોઈ જોવા નથી, પણ પાપનું બીજ ઉપર ચડી ગયું। આ પાપ છે। આ પાપ માથા પર બેસી ગયું। એવી રીતના આપણા માથા પર બહુ બધા પાપના બીજ છે। હવે આ કોઈને મનખંખો મારે છે, હવે આ પગ પડી જાય। હવે એને દેખાવા નથી દેતું, પાપને લીધે એને દેખાય નહીં અને એનો પગ ગંદો થઈ જાય। એટલે પેલા જાનવરને પાછા મારે છે, અહીંયા જાનવર જે કરી ગયેલું પાછું એક બીજ ચડી ગયું ઉપર, 3 જણા થઈ ગયા। હવે આમ ફૂટે છે અંદર ભિક્ષા આપવાની જગ્યાએ, એટલે એક પાપનું બીજ ઉપર ચડી ગયું પાછું। ચાર બીજ ચડી ગયા। હવે એ બીજને લીધે પેલો પૈસા નાખે પણ પૈસા બહાર આવતા નથી, જે એટલે પાછું એને તોડી પાડે, એટલે એક ઓર કર્મ બને। 10 મિનિટમાં નાખવું જોઈએ પણ નાની નાખ્યું અને એક ઓર કરી ગયું।
ગોટાળો કરીને આવ્યો એટલે આ બધા પાછા માથા પર બેઠા. વચમાં જંતુ આવ્યું એને પકડી માર્યું એટલે એ એક પેલું આ બીજું હજી પછાડી દોડ્યું. હવે પેલા બધા કાર પર બેઠા બીજ એના. એ વાયર કાપી આવ્યો, બ્રેક લાગતી નથી. બચી ગયો. હજી પેલા બધા પાપ એને પાડવાનો પ્રયત્ન કરે પણ પડતું એક ધક્કાની ઓર જરૂર છે કે પેલું પાછળ દોડતું આવતું છે. હજી પેલા જંતુને મારેલું ને પગથી એ ધક્કો મારી દીધો ટાયર પર, એ માર્યો અને ગયો. તો આવી રીતે આપણે કરોડો વર્ષથી આ જગતમાં ફર્યા કરીએ અને એકની ઉપર એક કર્મમાંથી નીકળવા સારું પ્રયત્ન કરીએ તો એમાંથી બચવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો બીજું કર્મ આપણા માથા પર આવીને બેસી જાય. અને એવી રીતના આપણે આ જગતમાં ઘૂમ્યા કરીએ છીએ અને એવી રીતના કરોડો વર્ષથી ઘૂમીએ છીએ અને આપણા બધાના માથા પર હજારો લાખો કર્મોના એવી રીતના બીજ પડેલા છે અને આપણે ભોગવ્યા કરીએ છીએ અને દુઃખમાં આ જગતમાં ચાલ્યા કરીએ છીએ. એટલા માટે શાસ્ત્રો આપણને ઇન્ડિકેટ આપે કે આપણે જાણી લેવા જોઈએ કર્મ. પુનર્જીવન મેં કિए गए पाप कर्म के लिए આ સજા અભી ક્यों? ઘણાને એમ થાય કે કેટલા નિર્દોષ લોકો મરી ગયા. હમણાં 2002માં કે 2006માં ધરતીકંપ ગુજરાતમાં આવેલો ને, કચ્છમાં. ક્યારે કઈ સાલમાં આવેલો? 2માં એક્ઝેક્ટ 2000માં. હા, તો 2000ની સાલમાં ધરતીકંપ આવ્યો ગુજરાતમાં અને બહુ બધા લોકો મરી ગયા અને નિર્દોષ બાળકો મરી ગયા. ઘણા લોકોને મનમાં બેસે જ નહીં કે આ નિર્દોષ બાળકો કેમ મરી ગયા. આપણે કહીએ ને પાછલા જન્મનું કર્મ, તો એ લોકો કહે કે હવે એને એનો પાછલો જન્મ યાદ નથી ને અત્યારે સજા મળે એનો શું મતલબ? લોકો એવું કહે છે કે નહીં કહે? પણ વસ્તુ એ છે કે માણસ મરી જાય તો બીજા જન્મમાં એને સજા કેમ આપવામાં આવે? તો આપણું શરીર 24 તત્વનું બનેલું છે અને જ્યારે આપણે મરી જઈએ ત્યારે આપણે 5 સ્થૂળ ધરતી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ ને પાણી, એ 5 વસ્તુને તત્વને આપણે છોડી દઈએ. બાકીના 19 તત્વ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર સહિતનું સૂક્ષ્મ શરીર આપણે બીજે શરીરમાં લઈ જઈએ તો એ આપણી સાથે જ હોય છે. ખાલી 5 તત્વો બદલાઈ જાય. એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જઈએ તો 24 તત્વો આપણી સાથે, 24 તત્વોમાંથી 5 તત્વો બદલાઈ જાય. પણ જે સજા ભોગવે છે તે મન, બુદ્ધિને અહંકાર. જ્યારે બી કોઈ વ્યક્તિને કષ્ટ પહોંચે ત્યારે મન, શરીરને કષ્ટ પહોંચે પણ એ અનુભવ કોણ કરે? મન, બુદ્ધિને અહંકારનું ઝુંડ. તો એવી રીતે આપણને સજા અલગ શરીરમાં મળે છે પણ એ મન, બુદ્ધિને અહંકાર તો એને એ જ છે. આપણે બીજી જગ્યાએ લઈ જઈએ છીએ તો એને સજા મળે છે. ને આ બધું આત્મા યાદ રાખે, આ બધું આપણને યાદ રહે છે. અને આવી રીતના જન્મો જ્યારે કષ્ટ ભોગવતા આપણે થાકી જઈએ ત્યારે ભગવાન કોણ છે એવું આપણે પૂછા કરીએ છીએ આ જગતમાં. એટલા માટે કોઈ નિર્દોષ હોય પણ એને સજા આગલા જન્મની મળે તો જોઈ કે આવી રીતના કેટલા જન્મો લગીને મેં સજા ભોગવી છે. એના મનમાં સૂક્ષ્મ દેહમાં એ છુપાયેલી હોય. જેવી રીતે આવી રીતે આ પુસ્તકને ધક્કો માટે ફટી પુસ્તક અહીંયા આવે પડીને. ક્યાં ગઈ પેન? पहले इस पुस्तक को धक्का दिया, फिर ये घूम के यहाँ आएगी, तब तक टाइम लगेगा. એવી રીતે કર્મનું ફળ આપણને મળવામાં ટાઈમ લાગે પણ એ મળીને રહે જ છે. મેં કર્મ કે નિયમ સે અંજાન થા. ઘણી વખત આપણે કહીએ ભગવાન મને નાનો બાળક હતો અને થોડી કર્મની ખબર હતી તો એને શું સજા મળે. પણ આપણે એ દિવસે 6 ડે સેશનમાં જોયું, સાધુ કહે કે ચાલો ટીસી આવ્યા, કહાં જા રહે હો?
जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ वहाँ अयोध्या में। तो टीसी कही चलो टिकट लाओ, देखिए कि टिकट तो मेरे पास है नहीं। तो कही चलो कहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ मथुरा जेल में। तो अपने नियम नहीं खबर हो तो नियम नहीं अगर पता है तो नियम हमें पता कर लेना चाहिए। इसलिए हमें हमारे बालक को ये ज्ञान देने चाहिए कर्म का। कर्म के नियम से हम बच नहीं सकते। अगर कोई आदमी खून करेगा और जज को बोलेगा मैं जानता ही नहीं था कि इसकी सज़ा मिलती है तो मुझे माफ़ कर दो, तो जज माफ़ करेंगे नहीं, सज़ा देंगे। एसिड में हम आँच डालेंगे, ओ ये छोटा बच्चा है इसको तो नॉलेज ही नहीं है, एसिड में हाथ डालने से जलता है, अग्नि में हाथ डालने से जलता है, लेकिन वो डालेगा वो जल ही जाएगा। तो कर्म की अज्ञानता से, जो भी नियम की अज्ञानता से हम बच नहीं सकते सजा से। क्या पुण्य कर्म से पाप धुल जाते हैं? कोई ऐसा कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं। शू पूछे कि मैं एक जन ने बचायो, मैं लोग એવું विचार, लोग ऐसा सोचते हैं कि आखी जिंदगी मौज मजा करेंगे, फिर बुढ़ापा आएगा तो थोड़ा ये धन एकत्र होगा, उससे मैं पुण्य करूँगा तो मेरे सब पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? कोई जज अगर कोर्ट में ले जाता है व्यक्ति को, भाई तुमने इसका खून किया इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इसका प्राण बचाया था इसलिए मुझे मेरा दोनों कर्म माफ़ हो कर दो। तो जज मानेगा क्या? तो ये जगत में अगर हम हमारे जज नहीं मानते तो भगवान के नियम में कौन मानेगा? कोई मानेगा? भगवान के नियम में सज़ा मिलेगी मिलेगी। पाप की सज़ा पाप, किसी की जान बचाई है तो पुण्य, और पुण्य की सज़ा पुण्य मिलेगा। हमने देखा ना, सोने की चेन, चांदी की चेन और लोहे की चेन, लेकिन बंधन तो रहेगा। तो अब आज का विषय हम यहाँ का समाप्त करते हैं। कर्म का सूक्ष्म सिद्धांत कैसे काम करता है ये सब हम अगले बुधवार को देखेंगे। कुछ लोग दलित जो भी है, भगवान शक्तिमान है तो मेरे कर्म क्यों नहीं काटते, ये सब जो गैर धारणा है वो अगले बुधवार को हम देखेंगे। हरे कृष्णा। है हाँ, बुधवारे रविवारे रामनवमी है।